معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 83 سے 94 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ ذُرِّيَّاتُهُمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذکر للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 83 سے 94 تک کا ترجمہ۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ علیہم السلام اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندے میں سے جسے چاہے دے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ کہہ دیں کہ میں تم سے اس قرآن کا صلہ نہیں مانگتا، یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانی۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، کہو جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا؟ اور جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اور آگ پر نقل کر رکھا ہے، ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دیں اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دیا کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یا بابرکت
बाबरकत जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है यानी कुरान पाक सॉरी और जो इसलिए नाजल की गई है कि तुम मक्के और इसके आसपास के लोगों को आगाह कर दो और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस किताब कुरान पर भी ईमान रखते हैं और वो अपनी नमाजों की पूरी खबर रखते हैं और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ यानी इफ्तरा करे या ये कहे कि मुझ पर वही आई है हालांकि इस पर कुछ भी वही ना आई हो और जो ये कहे कि जिस तरह की किताब अल्लाह ने नाज़िल की है इस तरह की मैं भी बना लेता हूँ और काश तुम इन जालिमों यानी मुशरिक लोगों को इस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हों और फरिश्ते इनकी तरफ अजाब के लिए हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें आज तुमको जिल्लत के अजाब की सज़ा दी जाएगी इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और इसकी आयतों से सरकशी करते थे और जैसा हमने तुमको पहली दफ़ा पैदा किया था ऐसा ही आज अकेले अकेले हमारे पास आए और जो मालूमता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आए हो और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारशियों को भी नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे शफी और हमारे शरीक हैं तो आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनक़ता हो गए और जो दावा कर तुम किया करते थे सब जाते रहे। ये इन आयात का 83 से 94 तक की आयात का तर्जमा था। अब इन्हीं आयात की तफसीर अल-नूर। ये हिस्सा भी कल वाली हिस्से के साथ ही मुंसलिक है कि अंबिया और रुसल के अकीदे का बयान है जिसमें और जिसके ज़रिए कुफार को दावत तौहीद दी गई है और उन्हें साथ ही तंबीह भी की गई है कुफार मक्का। और ये हमारी हुज्जत है जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनकी कौम पर अता की थी और यही हुज्जत कुरान के ज़रिए कुफार पर भी कायम की जा रही है। हम जिसके चाहें दर्जे बुलंद करें बेशक तेरा रब हिकमत वाला हर शय का इल्म रखने वाला है और हमने इन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम बेटा और याकूब अलैहिस्सलाम पोता अता किए इनको हदायत अता की और इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को हदायत दी और इसकी औलाद याकूब अलैहिस्सलाम में से दाऊद सुलेमान अयूब और यूसुफ मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को हदायत दी और हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकोकारों को और जकरिया और याह्या और ईसा और इलियास अलैहिस्सलाम को भी हदायत दी ये सब हमारे बंदे थे और इस्माइल और यसा और यूनुस और लूत अलैहिस्सलाम को हदायत दी और इन सब को हमने अपने अपने वक़्त पर तमाम जहान वालों से अफजल किया और कुछ इनके बाप दादा और भाइयों में से बाज़ को फजीलत दी और इनको हमने चुन लिया और सीधे रास्ते की तरफ हदायत की। ये अल्लाह की हदायत है अपने बंदों पर जिसे चाहे दे और अगर वो चुने हुए बंदे शिरक करते तो इनके भी सारे अमाल ज़ाया कर दिए जाते। ये हैं जिनको हमने किताब नबूवत और शरी कानून अता किए फिर अगर ये कुफार मक्का इसका इनकार करें तो हमने इनके बदले एक ऐसी कौम तैयार कर रखी है जो इनकार करने वाली नहीं होगी। यही है मज़कूरा अंबिया और रुसल अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने हदायत दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं की राह पर चलें यानी तौहीद की तबलीग का सिलसिला साबका अंबिया और रुसल अलैहिस्सलाम की तरह जारी रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अंबिया और रुसल अलैहिस्सलाम की तरह फरमा दें इन कुफार को कि मैं तुमसे दावत हक पर किसी से कोई उजरत नहीं मांगता। ये दावत हक नहीं है मगर तमाम जहान वालों के लिए नसीहत और याद दहानी है कि पहले अंबिया और रुसल अलैहिस्सलाम की कौमों ने एकामात इलाही से सरकशी की और कदर न की जैसे कदर की जानी चाहिए थी। जब बनी इसराइल ने कहा कि अल्लाह ने किसी आदमी पर कुछ नहीं उतारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछे कि किसने उतारी नूर और हदायत की किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम लाए थे किसका वर्क तुमने अलग कर दिया वर्क अलग कर दिया और उनमें से कुछ हिस्से को ज़ाहिर करते हो और बहुत सारा छुपा कर रखते हो।
याद रहे कि ये वो मक्की दौर था जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की खबर यहूद मदीना को भी पहुंच चुकी थी और उन्होंने ख़तरे को भांप लिया था। यहूद मदीना वहीं रहते हुए कुफार मक्का के ज़रिए साजिशें करने लग गए थे, और जब कुफार ने यहूदियों से वही का जिक्र किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि अल्लाह ने कभी भी किसी पर कोई चीज़ इंसानों के लिए नहीं उतारी। कुफार ने जब यहूदियों के इस जवाब का जिक्र हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो यहूदियों की इस राय के जवाब में ये आयात नाज़िल की, और तुम्हें वो इल्म सिखाया जाता है जिसका ना तुम्हें इल्म था और ना ही तुम्हारे बाप दादा को, तो ये इल्म किसने सिखाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें अल्लाह ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें छोड़ दें कि ये गलत बहस व तकरार में ही खेलते रहें, और ये है बरकत वाली किताब यानी कुरान मजीद जो हमने उतारी, तस्दीक फरमाती इन किताबों की जो इससे पहले मौजूद हैं, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर सुनाए मक्का वालों, उम्मुल कुरा और इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को, और इनको जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, इस किताब पर ईमान लाते हैं और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, यानी गलत बात अल्लाह से मंसूब करे कि ये अल्लाह ने कहा है, या कहे कि मुझ पर भी वही हुई है मगर इसे कुछ वही ना हुई हो, और जो कहे कि अभी मैं उतारता हूँ ऐसा ही कलाम जैसा अल्लाह ने कुरान उतारा है। और कभी तुम देखो जिस वक्त जालिम अल्लाह पर इफ्तरा बांधने वाले मौत की सख्तियों में हों और फरिश्ते जान निकालने के लिए हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें खारी का अजाब दिया जाएगा, बदला इसका जो तुम नाहक बातें अल्लाह की तरफ मंसूब करके कह रहे थे, और इस वजह से भी अजाब दिया जाएगा जो तुम अल्लाह की आयात पर तकब्बर से इनकार करते थे। और फिर इनसे कहा जाएगा बेशक तुम हमारे पास अकेले ऐसे ही आ गए हो जैसा हमने तुम्हें पहली बार अकेले बेबस और लाचार पैदा किया था, और छोड़ आए पीछे दुनिया ही में जो मालूम था हमने तुम्हें दिया था, और हम तुम्हारे साथ वो नहीं देख रहे जिनकी शफात का तुम्हें जोम था कि वो तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारा साथ निभाएंगे। अब बेशक तुम्हारे और इनके यानी बातल सरदारों या मबूदों के दरमियान सारे बंधन टूट चुके हैं, और वो तुम्हारे सब शरीक तुमसे गुम हो गए हैं जिन पर तुम्हें जोम था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।